Students, today we'll discuss the topic that is the preparation of carboxylic acid by the oxidation of aldehyde and ketones. But before I start the topic, we have to see something about the nomenclature of aldehyde, ketones and carboxylic acid. So first we will discuss nomenclature of aldehydes. Just see out. Beta, the first aldehyde is HCHO. Second is CH3CHO. Next one I will write CH3 CH2 CHO. Similarly the next one is CH3 CH2 CH2 CHO, and in the last there will be benzene और उस पे हमने CHO लगाया. Now there are two names, common name. One carbon aldehyde is formaldehyde, all of you know. Two carbon aldehyde acetaldehyde. Three carbon aldehyde propion aldehyde. 4 carbon aldehyde butyl aldehyde. Whereas in case of benzene it is benzaldehyde. Now as far as IUPAC name is concerned, this is one carbon atom, so methanol. For 2 carbon atom I will write ethanol. For 3 carbon atom propanol. For 4 carbon atom butanol. And this benzaldehyde, it is the both, you can say IUPAC name as well as the common name, that you have to remember. So this is, I have done the IUPAC and common name of aldehyde. Now after it, nomenclature of ketones. So in case of ketone, just see out. First is CH3COCH3. The common name, these are the two methyl groups. You can say on the left and right side of the ketonic group आपके दो methyl group हैं. So common name will be dimethyl ketone, and one more name is there, acetone. These two are the common name. जब IUPAC की बात करेंगे, this is a chain 1 2 3 ketone group है जो आपका नंबर 2 पोजीशन पे है. So name is propane 2-on. Now the next ketone is CH3CO CH2CH3. Now this is, now see clearly. So this is ethyl group, this is methyl. Alphabetically ethyl पहले आएगा. So I will write ethyl methyl ketone. Now as far as IUPAC name is concerned, this is the chain. नंबरिंग यहाँ से करेंगे. रीजन इज वेल क्लियर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलेगा. सो इट इज 4 कार्बन चेन ब्यूट एन 2-on. क्लियर. एंड देन द लास्ट वी हैव टू डिस्कस 2 कंपाउंड. दिस इज, अगर आप बेंजीन के ऊपर COCH3 लगाओगे, दिस इज एसिटोफिनोन. और अगर आप बेंजीन के ऊपर C6H5 ग्रुप अटैच करोगे, देन दिस विल बी बेंजोफिनोन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसमें कॉमन नेम हम लिख सकते हैं, ये आपका फिनाइल ग्रुप है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है. सो मिथाइल फिनाइल कीटोन. सिमिलरली यहां पर ये आपके दो फिनाइल ग्रुप्स हैं, सो वी कैन राइट डाई फिनाइल कीटोन. तो कीटोन में ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है ड्यूरिंग द नॉमेनक्लेचर. ओके. नाउ इन द लास्ट थोड़ा डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. Okay, just see out the students. So naming of carboxylic acid. So first carboxylic acid is HCOOH. In the series, next one is CH3COOH. Next CH3CH2COOH. One more we can, two more we can study. CH3CH2 CH2COOH. और बेटा एक केस हम स्टडी करेंगे जब हम बेंजीन के ऊपर वी विल पुट COOH ग्रुप. नाउ सी द कॉमन नेम फर्स्ट. 1 कार्बन एसिड, कॉमन नेम इज फॉर्मिक एसिड. 2 कार्बन एसिड, कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड. एंड 3 कार्बन एसिड इज प्रोपियोनिक एसिड. 4 कार्बन एसिड इज ब्यूटायरिक एसिड. और बेंजीन के ऊपर अगर आपने लगाया, देन दिस विल बी बेंजोइक एसिड. वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आपकी 5 कार्बन की चेन है CH3 CH2 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 COOH, सो कॉमन नेम हम लिख सकते हैं वेलेरिक एसिड.
सेम एल्डिहाइड में भी पॉसिबल है बेटा, CH3 CH2 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 COOH, दिस आर 5 कार्बन चेन, सो इट विल बी वेलेर एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अब इनके IUPAC नेम देखते हैं। तो 1 कार्बन एसिड मिथ एनओइक एसिड, 2 कार्बन के लिए आई विल राइट इथ एन ओइक एसिड, 3 कार्बन के लिए आई विल राइट प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन के लिए आई विल राइट ब्यूटेनोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इज बोथ द IUPAC नेम एज वेल एज द कॉमन नेम। ओके, दिस इज 5 कार्बन एसिड, आई विल राइट पेंटेनोइक एसिड। अब इसमें हमने जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन मेंशन नहीं करी है क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हो। जैसे प्रोपेनोइक एसिड है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज प्रोपेन 1 एसिड। Similarly, this butanoic acid, it can be written as butane 1 acid. Here, pentanoic acid, it is written as pentane 1 acid. So this we have done regarding the, you can say, short revision of the nomenclature. Now we will do the main process that we have to do. In today's lecture, we have to do the oxidation of aldehyde and ketones. Clear to all of you? So be remember, oxidation का meaning क्या होता है? Just see out. ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन को ऐड करना है। ठीक है, और इसके लिए वी नीड सम रिएजेंट्स। सो क्या रिएजेंट्स होंगे? सबसे पहले देखिए, वी कैन यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज कर सकते हो। नंबर 2, यू कैन यूज क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 in presence of concentrated H2SO4. This is said to be the Jones reagent. ये एसिडिक मीडियम में काम करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CrO3, the name is Jones reagent. Next we can use potassium dichromate in acidic medium, H2SO4. Clear? Number 4, we can use KMNO4. Be remember, जो पोटेशियम पर मैग्नेट है बेटा, ये एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, इन तीनों मीडियम में काम करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें आपके पास तीनों ऑप्शन है, एसिडिक मीडियम करोगे तो आप H2SO4, बाकी बेसिक और न्यूट्रल भी आप कर सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो दिस वी हैव रिटन द रिएजेंट दैट वी कैन यूज। नॉर्मली हम इन 4 रिएजेंट्स को यूज करेंगे, और ऑक्सीडेशन के लिए आपको हमेशा ये लिखना है, ये प्रॉपरली इंडिकेशन है कि हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे, फर्स्ट आई विल डू द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो HCHO प्लस O ऑक्सीडेशन, यू कैन यूज एनी ऑफ द रिएजेंट, आई कैन यूज कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज कर सकते हैं। सो एल्डिहाइड में ध्यान क्या रखना है, ये जो आपका ऑक्सीजन है ये ऐड होगा बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। सो आई विल गेट HC डबल, ये डबल बॉन्ड O मैंने ऊपर लिख लिया, एंड दिस इज OH, दिस इज HCOOH फॉर्मिक एसिड, और ये क्या था बेटा आपका फॉर्म एल्डिहाइड। आई विल टेक द नेक्स्ट वन, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस ऑक्सीजन। नाउ आई विल यूज, चलिए आई विल यूज जोन्स रिएजेंट, CrO3 प्लस H2SO4 वी विल यूज। तो ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आएगा, सो आई विल गेट CH3C, ये अब H का क्या हो जाएगा OH, और ये डबल बॉन्ड O एज इट इज, so it is CH3COOH. So this we have taken acid aldehyde. From acid aldehyde what we got? We simply got 2 carbon acid that is said to be acetic acid. Clear? Now we will take one more example. If I will take benz aldehyde, ठीक है, plus oxygen, now I can use potassium dichromate, K2Cr2O7 plus H2SO4. सो ये ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐड होगा, आई विल गेट COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड। तो इन शॉर्ट हमने किया क्या बेटा, वी हैव कन्वर्टेड द एल्डिहाइड ग्रुप इनटू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इस पूरे प्रोसेस में देखो एक ऑक्सीजन आपका ऐड हुआ है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2। ठीक है, सेकेंडली एक चीज़ और मैं बताऊंगा, यहाँ पर क्या है कि हमने किसी भी तरह का बॉन्ड क्लीवेज नहीं किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, हमने किसी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया, बी क्लियर ना, यहाँ पे हमने किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव किया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है,
oxidation of aldehyde, there is no cleavage of carbon-carbon bond. Therefore, aldehydes undergo oxidation easily as compared to ketones. अगर बेटा हम कीटोन से कंपेयर करें तो इनका ऑक्सीडेशन क्वाइट जल्दी होता है. चलिए, नाउ वी विल डू द सेकंड पार्ट, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स. रिएजेंट्स आपके सेम रहेंगे, डजंट मैटर. नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स. सो बी रिमेंबर बेटा, जो कीटोन्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन्स, सेकेंड वन इज अनसिमेट्रिकल कीटोन्स. क्लियर? सिमेट्रिकल कीटोन्स में बी क्लियर, जस्ट आई विल गिव यू द एग्जांपल, CH3COCH3 ऑन बोथ साइड जो अल्काइल ग्रुप है वो आपका सेम होगा. अनसिमेट्रिकल में CH3COCH2CH3. अब यहाँ देखिए बेटा, ये मिथाइल और ये इथाइल दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, सो दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन. तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में यू हैव टू अप्लाई पॉप ऑफ रूल. ये ध्यान रखना, अभी रिएक्शन में करेंगे पॉप ऑफ रूल क्या होता है. वैसे जब मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का लेक्चर अपलोड किया था वहां पर भी डिस्कस कर रखा है. ठीक है, सो बी क्लियर, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन हम नॉर्मल करेंगे. ठीक है, बट इन अनसिमेट्रिकल कीटोन हमें पॉप ऑफ रूल को अप्लाई करना होगा. ठीक है, चलिए नाउ सी द एग्जांपल. इफ आई टेक एसीटोन CH3COCH3, इट्स नेम इज एसीटोन, और आई विल राइट डाइमिथाइल कीटोन. चलिए, ऑक्सीडेशन प्लस O. reagent you can use any of the reagent. I can use concentrated HNO3, doesn't make any difference. अब क्या होगा, during oxidation of ketone there occurs carbon carbon bond cleavage. very important, हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है. तो बेटा मैं इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकता हूँ, इसको भी, किसी को भी ब्रेक कीजिए अगर आपका सिमेट्रिकल कीटोन है. कौन सा कीटोन है? सिमेट्रिकल. मैंने इसको ब्रेक कर लिया. ब्रेक करने के बाद अब एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, दोनों को एसिड में कन्वर्ट करो बाय काउंटिंग द कार्बन एटम. दोनों को एसिड में कन्वर्ट करना है. यहां पे 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का एसिड होता है HCOOH. यहां पे 2 कार्बन है, 1 and 2, सो 2 कार्बन का एसिड क्या होता है? CH3COOH. तो प्रोडक्ट इज आई विल गेट फॉर्मिक एसिड प्लस आई विल गेट द एसिटिक एसिड. ठीक है, ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है. आई विल टेक वन मोर और इसमें स्टडी करते हैं. CH3CH2COCH2CH3. दिस इज डाई इथाइल कीटोन. ये डाई इथाइल कीटोन, और अगर IUPAC नेम करें तो 1 2 3 4 5 की चेन है और 3 पे आपका कीटोन है. सो पेंटेन 1 2 3 4 1 2 3 4 5, पेंटेन 3 ओन 1 2. ठीक है, क्लियर. अब ये सिमेट्रिकल कीटोन है, बोथ साइड्स कार्बन एटम आपके क्या है? सेम. क्लियर. चलिए, अब अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे, रिएजेंट वी कैन यूज नाउ, हम लिख सकते हैं, कोई भी लिख लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. यू कैन राइट CrO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4. ठीक है, अब क्या करना है? कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव करना है. दोनों तरफ कार्बन एटम सेम है तो कहीं से भी क्लीव कीजिए. अब एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा. अब यहाँ कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम, मीन्स एक 2 कार्बन का एसिड और एक 3 कार्बन का एसिड. सो 2 कार्बन का एसिड होता है CH3COOH और 3 कार्बन का एसिड CH3CH2COOH. दिस इज एसिटिक एसिड एंड दिस इज propionic acid. So this we have done in case of oxidation of, you can say, symmetrical ketone. एक चीज ध्यान रखना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज और कहीं से भी कर सकते हो सिमेट्रिकल में, बट अनसिमेट्रिकल में हमें पॉप ऑफ रूल को अप्लाई करना होगा. दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ. सो जस्ट सी नाउ. Oxidation of unsymmetrical ketones. ठीक है बेटा, अनसिमेट्रिकल कीटोन में लेट्स टेक द एग्जांपल CH3CO CH2CH3.
दिस इज कॉमन नेम अगर ले बेटा, ये इथाइल और ये मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, आईयूपीएसी नेम 1 2, यहां से नंबरिंग करेंगे, ब्यूटेन 2 ऑन प्लस ऑक्सीडेशन, यू कैन यूज एनी ऑफ द रीजन, चलिए वी कैन यूज KMnO4 प्लस H2SO4। ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई पॉप-ऑफ रूल। तो पॉप-ऑफ रूल सेज कि जो आपका कीटो ग्रुप है इट स्टेज विद लोअर अल्काइल ग्रुप, ये वहां पे स्टे करेगा जहां पे अल्काइल ग्रुप छोटा है, और वी कैन से वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो देखिए ये कीटो ग्रुप है, अब लेफ्ट में 1 कार्बन है, राइट में 2 है, तो यहां पर कम कार्बन है, तो ये क्लीवेज आप ऐसे करोगे। कीटो ग्रुप को कहां रखना है, जहां पे कार्बन एटम आपके कम है। सो एक एसिड तो ये बनेगा 2 कार्बन, और बेटा एक एसिड ये बनेगा 2 कार्बन, तो आपके बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। तो पॉप-ऑफ रूल बिल्कुल ध्यान रखना, नॉट अ टिपिकल रूल। कीटो ग्रुप हमेशा उस साइड रहेगा जहां पे कार्बन एटम कम है, और वी कैन से लोअर अल्काइल ग्रुप। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, वी विल डिस्कस वन मोर एग्जांपल हियर। CH3CO CH2 CH2 CH3, this is 1 2 3 4 5, pentane 1 2 2 on, oxidation. Now this time I will use anything concentrated नाइट्रिक एसिड। अब देखिए ये कीटो ग्रुप है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन एटम कम है, तो ये इस साइड रहेगा। सो वी विल गेट फर्स्ट प्रोडक्ट 2 कार्बन एसिड, दैट इज CH3COOH, second product 1 2 3 carbon acid, that is CH2COOH, that is 1 molecule of acetic acid and 1 molecule of propionic acid. So student, this we have done, you can say the oxidation of aldehyde and ketones। ठीक है ना, ध्यान रखना है अच्छी तरह से कैसे हमने वर्कआउट किया। अब इन द लास्ट वन थिंग वी हैव टू डिस्कस, दैट इज aldehydes undergo oxidation readily, aldehydes undergo oxidation readily as compared to ketones। चलिए इसमें स्टडी करते हैं। सो अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देखिए, ध्यान से करना है, CH3CH डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीडेशन किया, आई हैव यूज्ड CrO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जुड़ जाएगा, आई विल गेट CH3COOH। तो यहाँ पे किसी भी तरह का देयर इज नो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, हमने इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव नहीं किया। बट अगर आप कीटोन लेके चलोगे, CH3COCH3 प्लस O, ऑक्सीडेशन किया हमने, वी कैन नाउ यूज KMnO4 प्लस H2SO4। अब क्या होगा, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव होगा, ठीक है। और इस क्लीवेज में क्योंकि ये सिमेट्रिकल कीटोन है तो आप किसी को भी क्लीव कर सकते हो, अदरवाइज इन अनसिमेट्रिकल आपको पॉप-ऑफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से इस बॉन्ड को क्लीव किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो एक एसिड मेरे को मिला 1 कार्बन एसिड, सेकेंड मेरे को मिला 2 कार्बन एसिड, और मेन क्या हुआ, हेयर देयर इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर? सो रीजन इज वेरी क्लियर, इन एल्डिहाइड्स there is no carbon carbon bond cleavage, whereas in ketone there is carbon carbon bond cleavage, therefore I can say aldehydes are
you can say more prior to oxidation as compared to ketone. So student, this is all about the topic, that is the oxidation of aldehyde and ketones to form the carboxylic acids. That's all.